Namaskar viewers. Once again in the Diva Forum, I have another wonderful achiever of our nation. Her name is Ms. Vandana Gupta. Vandana ji has shifted from a banking career to social work. And it's not a simple social work. She has touched the section of society which we generally tend to ignore or avoid, rather. So, but they are a very integral part of our society, and we are not able to address everything that they need and bring them to the mainstream. So, she, in her capacity, along with her team and other helping hands, has got into it. So, how is her journey and experiences, and of course, what's the future plan? All that we'll discuss, and as usual, it's going to be an informal discussion. So, let's get started. Formally welcome to Diva Forum, Vandana ji. बहुत बहुत थैंक यू स्वागत सो है। मच कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। तो पहले तो मुझे सचमुच ये सीन सामने आया कि when we are traveling there are distinctly two categories of society we see, one sitting inside the car, another one ask begging outside the car, and nobody really takes it so seriously. Signal green होता है, we just go ahead. लेकिन आपने उस सेक्शन को टच किया है, तो पहले तो ये बताइए कि बैंकिंग में क्या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था जो आपको लगा कि यू शुड गेट इनटू समथिंग एल्स? कीर्ति, माय जर्नी स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन एज यू टोल्ड मी कि, और जैसा सबको पता है, मैंने 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में स्पेंड किए, फ्रॉम अ वेरी जूनियर पोस्ट टू अ सीनियर लेवल एज एन टेलर ऑथराइजर एंड देन अ मैनेजर। आई हैंडल्ड एवरीथिंग। बट हाँ, वही बात थी कि सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं था। मतलब आप जब काम करके लौटते हैं तो आपको खुशी होती है कि आप you had spent a good day, but I didn't feel that. मुझे ऐसी खुशी मिलती नहीं थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा वो रहता था कि आज मैंने क्या किया। I mean, not to make everybody happy, सबको खुश करने के लिए, बट मैंने अपने लेवल पे अपने आप को खुश करने के लिए क्या किया। तो वो 10 साल तो मेरा वो करियर फेज था। एक वो होता है कि आप टीन एज में भी होते हैं कि आपका करियर प्रोग्रेस कर रहा है, सैलरी पैकेज बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, बट अंदर से खुशी नहीं होती थी। तो ये एक वजह थी कि बैंकिंग सेगमेंट को छोड़ के आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो मैं सोसाइटी के स्तर पे आके लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, जहाँ पे अगर मैं कभी रिटायर हो जाती हूँ कुछ, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड याद रखें कि हाँ, एक महिला मिली जिन्होंने नीचे स्तर पे आके हमारे साथ काम किया और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हुई, हेल्प करी। उस सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने बैंकिंग से एनजीओ में शिफ्ट किया। ये आई होल हार्टेडली अप्रिशिएट दैट बिकॉज 90% of the people work because they have to work, they have a compulsion, but very few people work for the satisfaction, rather they get a satisfaction from their job. तो ये poverty जो word है, it is a curse to our society, and they the mindset, the upbringing, the surrounding, the situation they are going through, and the atrocity, obviously. It's really hurting, extremely bad. How did you think of touching this section? From very early age, I noticed my mother going to gurdwaras, and then she also used to go to temples. And whenever she used to go, she used to carry a huge burden, huge package of food, clothes, and every time she used to go, and I am like, Mom, जैसे सब जाते हैं टेम्पल, आप भी दर्शन करके आ जाओ, क्यों इतना सारा? तो बोली, क्योंकि मैं सिर्फ दर्शन करने नहीं जाती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। So from that very age, I was noticing my mother doing it, and then this was imbibed in all the siblings. कि my mother is doing such a good work, but why she is also extending it to the poor people of the society? Why? And then she started telling, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने फेरी टेल सुन के वो बड़े हुए होंगे, मगर हमारी जो मदर थी वो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताती थी। कि अपने हेल्पर को या अपने गार्डनर को या आपके घर में जो भी आ रहा है काम करने, आप उसको उसकी लाइफ समझो कि वो कितने हार्डशिप से भी ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो दैट इज वेयर यू नीड टू हेल्प, एंड दैट इज व्हाट गॉड विल नोटिस।
सो ये जो था पॉवर्टी का उन्होंने जो सिखाया, और फिर वो साथ में भी लेके जाती थी कि चलो और देखो कि ये सामान किसके पास जाता है, ये भगवान को नहीं चढ़ रहा है, ये गुरुद्वारे में नहीं जा रहा है, बट गुरुद्वारे में हमारे जैसे ही बहुत लोग सेवा करके इसको और लोगों में बांट रहे हैं, एंड दैट इज द वे, मेरी तरफ से ये मेरी हेल्प है टू द सोसाइटी। वेरी ट्रू। आई थिंक ये संस्कार है जो आते हैं। और ट्रिगर क्या रहा कि एनजीओ चलाए या ऑर्गेनाइजेशन चलाए इस विषय पर पूरा? ट्रिगर था तब मैं अपने जॉब लाइन में ही थी, बैंकिंग इंडस्ट्री में ही थी। देयर वाज अ हेल्पर यूज्ड टू कम टू माय प्लेस, और जब वो घर आते थे तो कभी बारिश में भी भीग के आ रहे, तो आई सेड छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं। तो बोले नहीं मैम, छुट्टी ले लूंगी तो मेरे आगे भी एक परिवार है और मेरे पैसे कट जाएंगे, और वो पैसों की मुझे जरूरत है। एंड आई सी दिस वुमन वर्किंग इन अ टेम्परेचर, that too down with periods, which really hurt me bad, कि यार ऐसी जरूरत नहीं है, आप ऑफ ले लो and I will not cut your money। बोले आप नहीं करेंगे मगर another 10 people will get my salary, which will hamper me badly। So that really touched me, कि जब एज अ वुमेन मुझे पीरियड्स होते हैं तो what I look forward is कि मैं आराम कर रही हूँ या मुझे कोई काम नहीं है, बट इन वुमेन्स के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये होल सोल हमारी दी हुई सैलरी पे डिपेंड कर। तो दैट रियली ट्रिगर्ड मी बैड, और 2-3 रातें मुझे नींद भी नहीं आई ये सोच के। एंड व्हेनेवर शी यूज्ड टू कम एंड आई लुक एट हर फेस एंड आई थिंक कि कैसे, मतलब हमारे पास तो बैंकिंग में प्रोविजन है, छुट्टी लगा दीजिए मेडिकल लीव के, इनके पास तो वो भी नहीं। दैट वाज द ट्रिगर। पर I really salute you for this sensitivity, you know. Very few people have this, because I like to extract the help that I have, domestic help or otherwise also, because I look at my comfort. I seriously do not care about somebody else's suffering or pain for that matter. So Vandana ji, my observation or other what I heard from other people is like, people from this section are extremely harsh and extremely rude also, reason being their background. We are not blaming them, because they have been raised like that, they are living on age. So how do you find it? Rather, first of all, let me know how do you approach them first. Let's get into that. Like I said, I left my job and she was the first person. Her name was Prabha Devi, I remember. एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैम हम इस स्लम एरिया में रहते हैं और मेरे जैसी बहुत सारी माएँ हैं जो वहां पे आपको मिलेंगी, तो यू शुड गो देयर एंड सी कि क्या हाइजीनिक कंडीशंस हैं और क्यों हम फोर्स्ड हैं ऐसे काम पे आने के लिए। और वहां से आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड आई मेट एटलीस्ट 7 to 8 सच हेल्पर्स, और उनमें से कुछ कुक्स थी, कुछ क्लीनर्स थे, कुछ रोड पे जो क्लीन करते हैं सैनिटेशन स्टाफ था, तो उनसे मिले और उन्होंने बताया कि क्या क्या होता है और इतने कम पैसे में। द रीजन आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि आप बोल रहे हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड और हार्श होते हैं। मैम इन लोग को इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि इनके पास कभी कभी सैनिटरी पैड्स नहीं होते, ये क्लोथ्स यूज करते हैं। फर्स्ट जो मदर है वो भी कहीं काम कर रहे हैं और जो डॉटर है उसको भी काम पे जाना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग दे कम थ्रू। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से इनका हार्श होता है। एंड दैट वर्कलोड कि आपको अभी एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना है, तीसरे में पहुंचना है, एक साथ यू हैव टू डू 4 हाउसेस एंड देन व्हाइल कमिंग बैक यू आर सो टायर्ड एंड अगेन 4 o'clock यू हैव टू अगेन गो बैक। तो वो जो एक कंफर्ट जोन हम लोग को मिलता है वो इनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये फिजिकली तो इम्पैक्टेड है ही है बहुत बुरे तरीके से और मेंटली भी बहुत बुरे तरीके से हिट हो जाता है। That is the reason they are frustrated, they are harsh and they are extremely rude to us. Yeah, there is a reason. Definitely there is a reason. पहले व्यक्ति को जब आपने मदद की वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था। Of course. और फिर शायद उसने मुझे वो एज अ रिलेशन जो होता है कि हेल्पर और मास्टर वो बीच में नहीं था। She is open to discuss her problems and she comes to me कि आज ये हो गया वो हो गया, आज बेटा स्कूल नहीं गया, तो वो जो एक बैरियर था बीच में वो हट गया।
तो instead of a master, she found a friend. Yeah. आज and she has a comfort zone saying, दीदी आज आपके यहाँ काम नहीं करूंगी, आज मुझे कहीं जाना है, या आज मेरे बेटे का बर्थडे है, या मुझे मार्केट जाना है. तो वो एक कंफर्ट लेवल आ गया. दैट इज द एक्सपीरियंस आई वुड लव टू शेयर. Definitely. वो बैरियर हट गया बीच में. हट गया. और and you know other way around also, and they go extra mile to help you when they develop that bond with you. Exactly. It's like give and take, na. When you show humanity, humanity walks towards you. Absolutely. You will feel it. If you are not able to do an extra work, like if I'm sitting and I'm not able to make or cook for myself, है तो वो मेरे लिए हेल्प पर ही क्लीन करके जाना है, but she'll cook for me. Is the incentive what I get. And she sit with me because teenage में जब वो career phase था तो मैं अकेले ही रहती थी. So she'll sit with me, have food with me, and she'll have some tea, some chit chat and TV shows. So that was a good connect. Good relationship. So now you know my experience through my smile. Yeah, I can see that face is glowing. सोच की शुरुआत कब हुई? सोच की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई. और सोच का जो शुरुआत थी वो भी इसीलिए थी कि हमें अंडर प्रिविलेज वुमेन और इनके जो बच्चे हैं या पूरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जो बच्चे हैं अनएजुकेटेड हैं उनकी हेल्प करने के लिए. बेसिकली हमारा एनजीओ उन महिलाओं को अवेयरनेस देता है जो सैनिटरी पैड्स नहीं यूज करते, पढ़ते नहीं हैं और कोई दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं मगर उनके पास सपोर्ट नहीं है. To help the underprivileged women and the children of these segment of society, we started NGO, which was Soch Foundation. I am the trustee who is taking care of Delhi NCR, and Nutan Gupta is the first trustee who is heading from our office, which is based in Kolkata. I see. So you have one head office is in Delhi, and the sister branch is in Kolkata. Sister branch is in Delhi, and the head office is in Kolkata. Is in Kolkata, other way around. Okay. So what is the modus operandi? Like, how do you approach this people? First is we reach them. Of course. We don't wait for them to come to us. You. Yeah. We go there as a team. We volunteer. We Google certain areas, the slum areas. We try to reach them. हमारे 2 या 3 बंदों की टीम मिलके जाती है उन एरियाज में और हम उन्हें ढूंढते हैं. प्लस हम उनसे ये हेल्प लेते हैं कि आप हमें बताओ कि ऐसे आप जैसे और लोग कहाँ पे हैं जहाँ पे हम हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं. डिपेंडिंग टोटली ऑन द लाइफ पीपल वी मीट, क्योंकि वी बिलीव जितना हम जाके उनसे बात करेंगे जितना नॉलेज वो हमें दे सकते हैं वो गूगल लाइव भी नहीं देते. नहीं डेफिनेटली. तो हम गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, वहां पे हमें ये बच्चे मिलते हैं वॉलंटियर्स को या टीचर्स को, वो हमें बताते हैं कि ये मध्यम वर्ग से आते हैं, आप इनके पेरेंट्स को रीच कर सकते हैं क्योंकि इनको हेल्प चाहिए कि ये फीस नहीं पे कर पाते, कभी कभी गैप हो जाता है, बच्चा आना बंद कर देता है, तो हम क्राउड फंडिंग करते हैं कि भाई बच्चा पढ़ता रहे, उसकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे. तो हम किसी तरीके के डेटा पे डिपेंड नहीं है कीजिए, हम अपना इन्हीं लाइफ पीपल से मिलके हम खुद इन्हें ढूंढ के निकालते. आपने लिखा है कि if you change the life of a child, there is a big change that you bring to the family and eventually to the society. किस प्रकार देखिए, it's not only education, nutrition भी एक part है, medicine भी एक part है, संस्कार भी एक part है, तो it's a holistic development that the child needs. Are you touching all this or you are just focused on the food part? We are trying to touch it through education. एंड जैसा कि आपने बताया कि न्यूट्रिशन एक पार्ट है, तो उसके लिए हम औरतों को अवेयरनेस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप सही खाइए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका बच्चा हेल्दी होगा. और एजुकेशन के माध्यम से हम उन्हें ये बताते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप हेल्पर हैं तो आपको अपने बच्चे को भी हेल्पर ही बनाना है. योर चाइल्ड इज नॉट अ वे टू अर्न मोर मनी, ही इज देयर टू गेट अ गुड फ्यूचर. और अगर आप अगर मेड हैं या आप हेल्पर हैं या किसी के घर में काम करें, जरूरी नहीं आपका बच्चा भी करे. आप उनको ऐसा समझाइए कि मैं इतनी हेल्प कर रही हूँ, इस फेज में मैं रही ताकि आप पढ़ सकें. तो पहला लेवल ऑफ अवेयरनेस इन औरतों से है. और अगर उनके बच्चे बड़े हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे कुछ सॉफ्ट स्किल काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों को काउंसिल करते हैं कि पढ़ना कितना जरूरी है. प्लस ये
जैसे खाना इनको होता है, तो जी, हम इनको गाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट मील्स होते हैं कि वहां से आप खाना खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए। और जैसे अभी ये काम वालियां होती हैं, इनको हम लोग अनएविडेंटली उठा के अपना लेफ्ट ओवर दे देते हैं, विच इज रियली रॉन्ग। really wrong, तो absolutely. हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़े लिखे वुमेन्स का भी एक ग्रुप लेते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग्स करते हैं, जूम सेशंस करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, डिस्पाइट गिविंग देम अ लेफ्ट ओवर फूड, हेल्प देम विद अ पैकेट ऑफ पल्स, हेल्प देम विद अ आटा, लेट देम ईट फ्रेश। सो इनको आप बचा हुआ खाना मत दीजिए, इनको एक पैकेट आटा दाल दीजिए, जिसकी वजह से ये पोषण खाना खाएं और अपने बच्चों को भी वही खिलाएं, उनके बच्चे थोड़ी हेल्दी रहें। तो दिस इज द वे। ये काउंसलिंग की केतकी जी, एक्चुअली इनसे ज्यादा हमें जरूरत है। हाँ, I got your point. Yes, ये मुझे सचमुच I am impressed. I am really impressed. एजुकेशन लेवल पे हम जितना कर सकते हैं ना, हम उसका उल्टा ही करते हैं, हम लेफ्ट ओवर फूड दे देते हैं। जी जी। हमारा बच्चा नया खिलौने से खेलेगा और हाँ हम इन्हें टूटे हुए खिलौने दे देते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो कपड़े, वो हम बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल। अब हमें हर कॉज के नीचे लिखना पड़ता है कि प्लीज सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स मत दीजिए। क्या आप ओके। अपने बच्चे को देंगे? हाँ नहीं देंगे। तो हाँ, इनकी काउंसलिंग से पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं जिनको इसकी जरूरत है। जो डोनर है। हाँ। इसके बाद उनका भी दिल थोड़ा चेंज होता है, वो समझते हैं कि हाँ, जो हम अपने लिए नहीं करेंगे हम दूसरों को क्यों करके दे रहे हैं। यही हमने, ये वाला ही मोटस ऑपरेंडी हमने कोरोना में यूज किया। हाँ हमने कहा अगर आप चाहते हैं आपके घर में आए तो इनका वैक्सीनेशन करवाइए, हाँ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जो विटामिन आप खा रहे हैं थोड़ा इनके लिए भी ले आइए, इनको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए कि आप ये खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। थर्ड, जो खाना हम खा रहे हैं, अगर हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं कुछ, तो 500 का एक अच्छा सा राशन का पैक बनवा के आप उनको डोनेट कर दीजिए, ताकि वो बीमार ना पड़े, खाने की तलाश में वो किसी बीमार घर में ना जाए। ट्रू। तो हमारे लेवल पे काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। वंडरफुल वंडरफुल। और ये पॉइंट मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। थैंक्स फॉर एम्फसाइजिंग दैट कि इट्स नॉट ओनली द अंडर प्रिविलेज सेक्शन दैट नीड्स टू बी काउंसिल्ड, द डोनर्स नीड्स मोर हैंड होल्डिंग एंड मोर अवेयरनेस कि वो क्या दे रहे हैं। एक्सलेंट पॉइंट, एक्सलेंट पॉइंट। तो नाउ दैट यू आर सेइंग इट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि हैव यू आइडेंटिफाइड, सी जब आपको स्केल अप करना है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत डीप है और उसको आप, इफ यू वांट टू गो नेशन वाइड, you really need to have a very proper project plan and also availability of resources. तो आप कैसे इस पूरे प्लान पे काम कर रहे हैं वो आप मुझे बाद में बताइए, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए कि how is the response from people when you tell them that I mean, if you're interested, please support the education, please support the food, please support the medicine. How is the response? Are you getting a good response or you are still in that, little struggle mode? I'm getting a very good response. Wonderful. So first I'll start with my society where I live in. So in my society there are like 3,000 families. Okay. तो जहाँ पे एक महिलाओं का ग्रुप बना हुआ है, एक फ्लैट होल्डर्स का ग्रुप बना हुआ है, तो हम वहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो लोग मतलब खुले दिल से उस कॉज का वेलकम करते हैं, इन टर्म्स ऑफ काइंड, कैश, व्हाटएवर दे कैन डू बेस्ट। प्लस वो वॉलंटियर भी करते हैं। अब कल हमारा एक और कॉज है जहाँ पे हमें कुछ रेफ्यूजी बच्चों के लिए मणिपुर से रिक्वेस्ट आया कि 100 रेफ्यूजी बच्चे हैं जिनके पास स्कूल्स बंद हो गए हैं और बुक्स नहीं है और उनको टॉयज चाहिए ताकि वो अपना टाइम ऑक्यूपाई कर सकें। तो कल के ही हमने कॉज रेज मैंने किया, तो सोसाइटी की सारी महिलाएं रेडी हो गई कि हाँ, कॉमिक बुक्स हैं, टॉयज हैं, हम डोनेट करेंगे और आपके साथ कॉज में आके खड़े भी होंगे। तो रिस्पॉन्स इज रियली गुड। पीपल आर स्टैंडिंग अप, रेडी टू डोनेट, ready to get involved also. Yeah. And not only the society, if I speak to some psychologists, some doctor, nutritionists, even they are happy to get connected to counsel these ladies and the children as well. So the response is quite good. Wonderful. Really good. Really good. And what I see is that you're trying to not only focusing on one section, you are basically trying to give them a holistic development. Education भी दे रहे हो, nutrition भी दे रहे हो, medicine भी दे रहे हो, संस्कार भी दे रहे हो और उनको मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड उसमें लाने की कोशिश भी कर रहे हो। Do you have any shelter or something wherein you can bring the children and keep them and nourish them? Is there something like this in future? If not now.
one we have identified in Kolkata. Uh-huh. It's been adopted. Mhm. So whatever causes we run or we get a report, first we report it to the government channel. I see. This is the child which has been rescued, ताकि उनकी जो formalities हैं, हाँ. they do their paperwork, Uh-huh. and then they gave an approval कि हाँ, you can accommodate the child. I see. So we go government channel wise so that the misuse of the आप जो सुनते हैं human trafficking होती है, वो नहीं होनी चाहिए. Right. And the process is absolutely clean. ऐसा कोई शेल्टर होम अभी हमने दिल्ली एनसीआर में नहीं लिया, बट कोलकाता में we have identified. You have, and I'm sure you are going to have more such in future. Now that you have started. Yes, all the best for that. अच्छा वंदना जी, now अभी आपने जो बताया कि you are involving the legal part also because to avoid the further consequences. Yes. कोई ऐसी गवर्नमेंट डिसिप्लिनेटेड बॉडी है जो आपको इसके लिए हेल्प करती है और some private people are helping you? हमने आइडेंटिफाई किया प्राइवेट पीपल की तो हम हेल्प नहीं लेते क्योंकि उनके कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते कीर्ति जी. तो वी हैव कॉन्टेक्टेड कारा. ओके. कारा इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. वो अपना पेपर वर्क करती है क्योंकि कोरोना काल में जितने बच्चे अनाथ हुए उनका सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन करती है. सो इफ वी हैपन टू आइडेंटिफाई एनी सच पर्सन, we always advise that person who has identified, either we have identified, we report it to Kara. Okay. There is no middle section to it, so that इन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि स्पेशली कोरोना काल में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली सामने आई कि जैसे हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब when we heard the news that small kid lost both the parents, two siblings and parents are no more, everyone felt, the heart went to them, but we didn't know where to go, what to do, how much to do. And then there are n number of phone numbers and n number of bank accounts shared on social medias that we are helping, but as you rightly said, there are always chances of misusing it and getting misled. So is your organization listed with Kara? No, not as of No, as of now. Okay. They do have any prerequisite for it? Not really. First, they have a helpline number. In case it is not working and nobody is contactable, you can write them and they respond. Also, you can contact National Commission of Women to report such cases where you find an abandoned child or somebody is giving an ad that I'm selling a child, I can give you a child. You can report such cases to National Commission of Women. I see. Okay. They have a helpline number for that. You have a helpline number for that. Okay. इसके लिए आपको अलग अलग एंटिटीज की हेल्प लगती है ना, डॉक्टर्स की भी लगती है, फूड सप्लाई की भी लगती है, एजुकेशन के लिए भी लगती है. तो आर दिस पीपल एसोसिएटेड विथ यू ऑफिशियली और यू आर जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड कॉल एंड गोइंग टू समवन? They volunteered to join our organization. Okay, so you have already spoken with them and you have set up that communication. Plus, I keep making my own connections. What I do is, if I go to a doctor, supposedly a gynecologist, and after my problem is resolved, I try to connect with the person personally. Doctor, I'm running this NGO. Would you like to volunteer for such people? Cause, yeah. 1 hour or 2 hour on a odd Saturday or Sunday. Yes, yes. So they're kind enough to get connected. I work on my personal level. Yes, yes, yes. I don't wait for an opportunity. I create one, Ketki. Good, really great. I appreciate that. And what I'm getting to know is like, it's not yet another NGO wherein, there are a number of people sitting and actually nothing much is happening. आपके पास यदि किसी को कनेक्ट करना है और आपको किसी को वॉलंटियरी हेल्प करना है, not necessary in your two places, maybe let's say in Bangalore for that matter, how would they reach you? There is a helpline number on my website. Plus there is an email ID to reach me. Just like these Manipur people have reached me. ये जिन्होंने मणिपुर से हमें रिक्वेस्ट भेजा है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही आया है. अच्छा. और उन्होंने बोला कि मैम ऐसे 100 रेफ्यूजी बच्चे हैं, आई गॉट टू नो कि आपका एनजीओ है और उसके थ्रू हमने आपको रीच किया कि प्लीज आप इन 100 लोगों की मदद करिए, हमें बुक्स और टॉय मटेरियल भेज दीजिए जिसका कॉस्ट मैंने आपको बताया. तो आई एम श्योर यू आर वैलिडेटिंग द रिसोर्स आल्सो कि जहां से आया है यू विल ऑथेंटिकेट इट एंड देन गो फॉर द हेल्प, है ना? एब्सोल्युटली वेरिफिकेशन किया है, उनसे बात किया है एंड दे हैव सेंड
proper website details, हाँ, a license number of their NGO की हम भी ये verified हैं. You हम्म, can send the details and material to us. या व्हाई एम आई आस्किंग इज क्योंकि जब मैं कुछ पैसे आपको देती हूँ एज अ डोनर, आई ऑल्सो यू आर आंसरेबल टू द डोनर, सो आई एम श्योर यू you have to keep the record of that as well. Once again I'll come to the same question, Anand ji. जब हम ये जो स्लम एरिया या रैक पिकर या ऐसे जो लोग देखते हैं, जनरली एज अ कॉमन सिटीजन आई टेंड टू अवॉइड मोस्ट ऑफ अस यस, एंड हम लोग रास्ता बदल के चले जाते हैं, मतलब वो इस रोड पे तो हम उस रोड पे चले जाते हैं, ऐसे ऐसा हमारा रिएक्शन होता है. उसके कारण भी है, आई विल नॉट गिव एनी जजमेंट ऑन दैट, पर जब आप इनको अप्रोच करते हो तो क्या ये तुरंत तैयार हो जाते हैं कि आपको थोड़ा समय लगता है? तुरंत तैयार नहीं होते, नहीं होते हैं ना. हाँ, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये वही करते देखा हुआ है. हाँ, तो उनको ये लगता है ये सही है. अगर मेरा बेटा कुछ कर रहा है और मैं भी वो कर चुकी हूँ तो उसको लगेगा ये सही है करना. तो कन्विंस तो नहीं होते हैं, काउंसलिंग्स करनी पड़ती हैं, इनके एरियाज में जाके इन्हें समझाना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जितना प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वैक्सीनेशन लीजिए, अगर बहुत सारा ह्यूज पॉपुलेशन था जो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहता था, रिएक्शन का डर हो या किसी ने कोई स्टोरी बता दी हो या अपना कोई एक्सपीरियंस बता दिया हो जिसकी वजह से उनके मन. बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री लेवल का बंदा कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि भाई देखो वैक्सीन, जबकि उन्होंने खुद ले ली. आई नो, फोटो भी डाल दी. ये ऐसे ही हमारा भी काम है, कोई एक बारी में कन्विंस नहीं होता, किसी को काउंसलिंग की जरूरत होती है. कुछ होते हैं जो एक बारी में समझ जाते हैं, सेंटर्स में आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खाना भी खाते हैं, समझते हैं कि क्यों जरूरी है, फिर it works like somebody yes, somebody no. हाँ, तो काउंसलिंग प्लेज अ बिग रोल इन दिस, आई एम श्योर अबाउट इट, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट. काउंसलिंग में ये होता है केतकी जी की काउंसलिंग शायद मैं भी अपने लेवल पे कभी कभी नहीं समझा पाती हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है. जैसे बच्चों के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जिस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं खेलते हुए, या फिर कोई ऐसा उनके लेवल का एनिमेटेड प्रेजेंटेशन है वो देखे तो बच्चे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं. वो बोलते हैं ना, जिसकी आर्ट होती है वही कर सकता है. नॉट एवरीबडी कैन बी लता मंगेशकर. ट्रू. तो यही है, मैं भी नहीं कर पाती. तो और जहाँ पे औरतें होती हैं उन्हें पोषण का मतलब नहीं समझ में आता, उनको लगता है हम दाल चावल खा रहे हैं तो पोषण है. तो उनको डॉक्टर बताते हैं कि पूरा पोषण आहार क्या होता है. उनको क्यों, बहुत सारी महिलाएं जिनको पता नहीं पोषण के, पता नहीं है. हमें भी यही लगता है पालक की सब्जी, दाल ले लियो, चावल ले लिया, ये तो पोषण है, ये तो हो गया न्यूट्रिशन, और क्या होता है. बट वही काम एक गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से करती है. उस लेवल पे आपको काउंसलर्स और एक्सपर्ट काउंसलर्स की जरूरत है. जी. अच्छा, चाइल्ड साइकोलॉजी भी एक पार्ट है इसका, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नहीं, पर मेरा एक इस पे एक डेविल्स एडवोकेट वाला क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत क्रीमी लेयर पे काम किया है या पढ़ा है, वो चिल्ड्रन ऐसे हैं जो बहुत ही स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, पर आर दिस काउंसलर्स कैपेबल, साइकोलॉजिस्ट रादर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी? केतकी जी, इसमें मैं यही बोलूंगी, टू फ्यू केसेस जो बहुत ही स्टबन होते हैं, बहुत ही स्टबन. मान लीजिए ऐसे बच्चों को समझाना मुश्किल है जो जैसे रेड लाइट एरिया से जो महिलाओं के सेक्स वर्कर्स के बच्चे आते हैं, वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं. तो उस लेवल पे साइकोलॉजिस्ट भी कभी कभी शी हैज टू स्टेप बैक, क्योंकि दे हैव मोर हॉरर स्टोरीज टू नरेट, दे हैव मोर बैड एक्सपीरियंस एंड आइडियाज टू शेयर. तो इट टेक्स सेशंस. मतलब जो काम एक नॉर्मल बच्चे के साथ जो रख पिक है या कुछ है, तो उसके 2 सेशंस में वो समझ में उसके माँ बाप, इन बच्चों को समय लगता है. आराम से कभी कभी 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं. ओके. हाँ, I completely understand this part, though I cannot relate with it, but I'm trying to analyze the situation because they have more reality struck life which we have not seen. They have seen a harsh reality and which we have not seen. So it's really difficult for them to
first of all digest what you are saying and then believe in you that my future is going to be bright, because they have no reasons to believe. Plus, the biggest reason, KPG, is they have not seen a happy life. Happy life. Happy life, forget about happy life. They don't have a happy moment even. Moment in life, yeah. They don't know the term called family. Yeah. So Yes. it takes time, but some of them understand, yeah, for 10%, 5%, no Yeah. solution. No, and I really appreciate you for this, because the very reason I wanted to talk to you is for this, because I completely know how difficult it is to convince this section to do anything that is so-called normal for us, and it is not normal for them. And they are stubborn enough not to listen to you and not to follow what you are saying. Whether it is good or bad is secondary. Yeah, and the situation also matters. Yes, of course. Even if you drag their hand to come out of the situation, yes. कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो वापस उसी से जगह पहुंच जाएंगे. Yes, true, very true. They are living on the edge, no doubt about it. Deprived section is one side of it. Mahilaएं, women, women and girl especially, they need a special care. They need a special handling, because एक तो psychologically बहुत badly affected है, or physically also they are not in a very good condition. Are you having any separate way of handling this, or it's just the same for everybody? Separately, I try to make them understand. अब जैसे मैम ये होता है कि किसी किसी को प्रॉब्लम क्या है उनको ये नहीं पता. Can understand what I'm saying? As a woman, you are educated. You know what is a stomach pain and what is a headache. Yes. For them, they are undergoing PCOS problem or any problem. वो उनको पता ही नहीं है. Yeah. तो वहां एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपनी बॉडी का प्रॉब्लम खुद ही नहीं जानती हैं. और जो थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है वो दे एंड अप डूइंग अ रॉन्ग ट्रीटमेंट. तकलीफ पेट में है और दवाई सर की आप खा रहे हो तो दैट विल नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम. तो इसलिए इन औरतों को हेल्प की ज्यादा जरूरत है कि वो समझ सकें कि प्रॉब्लम क्या है. मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो व्हाट इज अ हार्मोनल डिसबैलेंस. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर स्कैर्ड कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे तो हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो जाएगी. तो प्रॉब्लम यहाँ ऑब्वियसली दे नीड अ स्पेशल केयर. हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गायनोकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करने को, जो ज्यादा टाइम दे सके. अब आपको पता है कोरोना टाइम में डॉक्टर्स का भी थोड़ा टाइम लिमिटेड हो गया है. एब्सोल्युटली. एंड दे आर मोर ऑक्यूपाइड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि डॉक्टर का भी थोड़ा कम है. तो हम गायनोकोलॉजिस्ट से भी कर रहे हैं और हम डाइटिशियन से भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसे जैसे जूम कॉल पे ही हम कुछ महिलाओं को अपने घर में लॉग इन करा देंगे. हमें हेल्पर दे अटेंड अ सेशन. या अपने ही इनको मैंने हेल्पर को बोल दिया कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ले आओ जिनको ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपसे बात करेंगे. वो ही सुनते हैं ना कि डॉक्टर कुछ बता रहे हैं तो दे आर रेडी टू लिसन. समझ एक्सेप्ट करते हैं. agree completely. That is the line we are trying कि ऐसा कुछ हम और कर सके. और ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये पेंडेमिक ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया. तो आई एम श्योर यू आर ऑल्सो डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट. तो आपकी तकलीफें ज्यादा बढ़ गई है. वन सेकेंड थिंग, आई एम श्योर आई नो दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो. So I would like you to tell more about that as well. कोरोना में प्रॉब्लम्स तो केतकी जी सबकी बढ़ गई. सबकी, क्योंकि हर फैमिली में एक दो केसेस थे ही. कहीं पे ऐसा था पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है. तो दिक्कत ये आई, ये ऐसा एक इन्फेक्शन वायरस है कि आप जाके किसी की हेल्प नहीं कर सकते. तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. और जो वॉलंटियर कर रहे थे, हमने मेडिसिन, मील्स जो भी हम डिलीवर कर सकते थे वो करवाया. पीपी किट्स, मास्क, सैनिटाइजर. अब ये करने की मुहिम में जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए. तो वो एक सेटबैक था कि भाई ध्यान से करो, आपकी भी फैमिली, आप इन्फेक्टिंग. बट दे आर हम्बल पीपल जो, और बहुत सारे एनजीओज भी साथ में जुड़ गए. इररिस्पेक्टिव कि उस एनजीओ का सेगमेंट अलग है, वो एनवायरमेंट के लिए काम करता है, बट राइट with open hearts they welcome everybody कि हम करें. तो इसमें ये हुआ.
फैमिली का बहुत सपोर्ट था, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, हम्म, तो वो सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद मैं भी जाती थी कॉजेस करने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दवाइयाँ, पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, और सोसाइटी जो हेल्प कर सके वो भी कलेक्ट करके इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ खरीद के, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सब पहुंचवाना। हाँ, इसमें ये हो गया कि मुझे थोड़ा डर भी लगता था, I know, वो हम सबको लगता है, मुझे थोड़ा absolutely, ज्यादा इसलिए लगता था क्योंकि मेरा बेटा है और वो हाँ, बहुत छोटा है, और मुझे वापस आना है, फिर से अपने घर का भी काम रिज्यूम करना है, क्योंकि absolutely, एट दैट पॉइंट इन टाइम हम सब विदाउट हेल्पर थे, absolutely, मोस्ट ऑफ अस। most of जिनके us, फुल yes, टाइम रहे होंगे हेल्पर शायद वही थे। शायद वही है, हाँ, और प्रिकॉशंस भी ले रहे थे, अच्छी हाँ, बात है, लेना भी चाहिए, हम्म, बट हाँ उस समय थोड़ा टाइम थोड़ा क्रूशल हो गया, हम्म, वॉलंटियर्स कम हो गए, हम्म, डिमांड ज्यादा होने लगी हम्म, बेड्स और ऑक्सीजन की, तो हम्म, उस समय वर्क प्रेशर बढ़ गया। हम्म, फिर वापस आके अपना घर का केयर करना, हम्म, और टू मेक श्योर कि आई डोंट इन्फेक्ट एनीबडी और हाँ, आई डोंट इन्फेक्ट don't get माई, infected, yes, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड देन सोसाइटी में भी बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल, हम्म, मतलब उनके घर में खुद केसेस हैं, आई नो, बट दे आर रेडी कि यार यहाँ चले जाओ, इस हॉस्पिटल में पता कर लो, यहाँ बेड्स हैं, दे आर लाइव कॉलिंग, दे आर पुटिंग अप मैसेजेस, ट्विटर पे रेज कर रहे हैं। उस टाइम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुआ ये जो बीजेपी का ऑन ग्राउंड लेवल ये सब हाँ, जो काम कर रहे थे, चारू प्रज्ञा जी थी, कुलजीत सर थे, जी, तजिंदर बग्गा जी को आप जानती होंगी, जी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम बहुत किया। काम किया है, आई नो, इन लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया और उस ग्रुप में हमें अपना हिस्सा बनाया, एनजीओ, और बोला कि हमसे जो हेल्प हो सकेगी हम करेंगे, और आप हमारी जो हेल्प थ्रू वॉलंटियर्स कर सकते हैं वो करिए। ट्रू, हमने नोएडा और दिल्ली में मील्स का, मेडिसिन का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिलीवर करने का सारा काम देखा किया, और हम क्रीमेशन ग्राउंड्स में भी जाके हमने पीपी किट्स बांटे हैं, और उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने किया जिसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग करके उनको समझाया कि वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकते सेफ हैं। रखिए, हाँ, इसके साथ हमने डॉक्टर से संपर्क करके जो विटामिन होते हैं जो उनको थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे वो हमने उनको दिलवाया। तो उस लेवल पे हाँ बहुत क्रूशल और टफ टाइम था, बट वी मैनेज्ड। यू मैनेज, एंड आई थिंक तब आपकी हेल्प की ज्यादा जरूरत पड़ी सोसाइटी को, बिकॉज everybody were left with lot of insecurity, lot of uncertainty and lot of fear. तो डेफिनेटली इतने लोगों से आप अभी 3 या 4 सालों में मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, दोनों तरफ से, एक तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा है जिसको आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ऐसा कोई अनुभव है कि जो एकदम इम्पैक्ट कर गया हो कि अरे इट इज वर्थ इट? बहुत सारे वर्थ आई एम श्योर। वर्थ इट तो बहुत सारे थे, बहुत अप्रिसिएशन आई। सोसाइटी में कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला ओम बिरला जी से, माननीय ओम बिरला जी से, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया। कोरोना वॉरियर्स जो दिल्ली एनसीआर के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने अपने रेजिडेंस पे हम सबको इनवाइट किया Nice. और हमसे बातचीत करी, चर्चा करी, और हमारे एफर्ट्स सुने कि Appreciate. कैसे एक एक कोरोना वॉरियर दिल्ली और एनसीआर में काम कर रहा था। उसके उपलक्ष्य में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उन्होंने बहुत अच्छा एक पुरस्कार दिया कि इसको पढ़िए, अपने देश को समझिए। तो वो एक बहुत अच्छा वर्थ इट मोमेंट था मेरे लिए, जो मुझे मेरे साथ हमेशा रहेगा। आई फील प्राउड ऑफ इट। डेफिनेटली। कभी कभी ना ऐसे होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अभी तक बहुत महिलाओं से बात की है और हर एक की कहानी सुनने जैसी है। Every person has gone through a lot to come to this stage. I vouch for it. मेरे संपर्क में ऐसा कोई नहीं आया है जिसका इजी केक वॉक रहा होगा। हर एक ने अपना बैटल फाइट किया है एंड रीच टू दिस लेवल। तो कभी कभी उन्होंने ऐसे मुझे ये भी कहा है कि जब वो इस राह पे चल पड़े हैं तो कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि जब आपको लगता है कि अरे मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो have you ever felt that no, I think I made a mistake, I was better off being in secured banking sector? मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं है। नहीं आया। मैं अब जो भी कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और जब लोग जो मुझे नहीं जानते, क्योंकि जो आपको जानते हैं ना वो हमेशा आपका अच्छा बोलेंगे, अच्छा
बट आपको एक रेयर फीलिंग आएगी अगर आप मुझे नहीं जानती और मैं आपको बोलूंगी गुड जॉब केतकी, एब्सोल्युटली। तो जो वो एक स्ट्रेंजर के थ्रू आता है ना, जी वो जी। बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे सैलरी से भी बड़ा लगता है कि आई एम आज श्योर। एक आदमी सो रहा है, उसको पता है कि वंदना नाम की एक बंदी ने मेरा हेल्प किया, या फिर सोच फाउंडेशन के माध्यम से मैं उससे कनेक्ट हो सका। जी। आई रियली डोंट रिग्रेट अ सिंगल सेकेंड अबाउट इट कि आई एम मैं श्योर। एक डिग्निफाइड जॉब में हूँ नहीं हूँ, मेरी 6 डिजिट हाँ सैलरी हो या 5 डिजिट। हाँ, डजंट मैटर या। पर ये है ना वंदना जी, ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप इसमें जाते नहीं। टिल देन यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ। अच्छा वंदना जी, और एक थॉट दैट क्रॉस माय माइंड इज फैमिली का सपोर्ट कैसा है? बिकॉज जब आप व्हेन यू आर नॉट फाइनेंशियली अर्निंग, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हिट करता है ऑन द फैमिली लेवल ऑल्सो, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और पर यू आर इंक्लाइन टू डू दिस, तो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। आई होप इट इज नॉट इन योर केस, बट आई स्टिल वांट यू टू शेयर दैट मोमेंट। विद माई फैमिली केतकी जी ऐसा था, जो मेरी पूरी फैमिली है, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। ओके। मतलब मेरे मेरे फादर इन लॉ वो हमेशा इंसिस्ट करेंगे कि जो करना चाहो करो, और ऐसे लेवल पे करो कि तुम्हारा नाम भी हो रहा है और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं करो कि नाम करना है, तुम अंदर से खुश भी हो रहे हो और दूसरे का भी भला हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ का भी यही है कि बाहर निकलो, लोगों की हेल्प करो, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सिखाया जिसके लिए तुम अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर सको आप करो। करो। तो वो दोनों तो हमेशा सपोर्टिव थे, मेरे सास ससुर हमेशा। नाउ Beautiful. कमिंग टू माय हस्बैंड, हम्म, मेरे हस्बैंड डे प्रोफाइल में है, हम्म, एंड ही इज वर्किंग ऑन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल डेजिग्नेशन, तो आप okay. समझ सकते हो उनका वर्क प्रेशर कितना होगा। Absolutely, absolutely. तो उस टाइम में, जो पेंडेमिक टाइम में उन्होंने जो सपोर्ट किया, हम्म, अपनी थोड़ी बहुत कॉल्स अवॉइड करके, कैमरा ऑफ करके बच्चे को संभालना, एंड इट्स लाइक एटीट्यूड इज लाइक कि तुम करो मैं मैनेज करूंगी, गो अहेड। तो वो जो एक टेंशन थी ना दिमाग में, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पीछे आपके सास ससुर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जब मैं वापस आ रही हूँ तो वो कॉल कर रहे हैं कि तुम ठीक हो, आज कितने लोगों से मिली, कितने लोगों का हेल्प हुआ, और जब ये अवार्ड मिला, खासकर मेरे फादर इन लॉ, वो तो मतलब बहुत ही खुश हो गए लवली। कि ओम बिरला जी से मेरी बहू मिल के आई। मिली के आई जी। तो ये एक बताने लायक मेरे लिए प्राउड सम्मान की मोमेंट है, बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सास भी बहुत खुश हो गई कि बहू कर रही है। मतलब हमारे घर में मैंने वो लेवल नहीं देखा जहाँ पे बहू और बेटी में डिफरेंस किया जाता है। इट्स माई ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट शेयरिंग विद यू, या मैंने नहीं देखा। और वो ये बोलेंगे हाँ वरना जो करना है करो, और हम नहीं है कि तुम्हारा जॉब है तुम्हें करना है, उनको ये समझ में आता है कि ये जरूरी क्यों है। तो इसलिए मेरे लिए चीजें ना मुश्किल नहीं थी केतकी। मुश्किल तब होती है जब मुझे किसी को समझाना पड़ता हो, वो यस समझ ही नहीं रहा है। यस मगर यस यहाँ पे यस। मेरे सास ससुर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बहू एक बहुत अच्छा काम कर रही है, एक अच्छे कॉज के लिए आगे आ रही है, बिल्कुल और बिल्कुल 10 लोग और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल। एंड मेरे पास जो मैसेजेस हैं आपको कभी भेजूंगी, जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता है, उन्होंने फिर भी कहा कि मैं आपकी पूरी फैमिली को दुआएं देता हूँ कि लवली। बेबी फ्लू जैसी टैबलेट है, क्या है, एक टैबलेट ही है, आई नो। मगर किसी की जान बच गई, जी कोई जी एकदम ठीक हो गया, जी। तो वो सारी दुआएं मेरी फैमिली को मिली। तो बिल्कुल। यस, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ एंड माय लवली हस्बैंड always extended their support 100. Excellent, excellent. And I think as a common citizen, I would also give lots of thanks to all of them कि जिन्होंने आपको अलाउ किया और इनकरेज किया ये काम करने के लिए। अच्छा, एज अ सोच फाउंडेशन, हाउ बिग इज योर टीम? We have a team of 10 people in Kolkata. Okay. And over here, I have started with 4 people, which are working on internship. I see. क्योंकि हमने जब एनसीआर का ऑफिस सेटअप करने की कोशिश करी थी केतकी जी, उसी समय पेंडेमिक शुरू हो गया। Oh, yeah. तो आई नेवर वांटेड टू पुट एनीबॉडीज लाइफ एट रिस्क। Yes. तो उन्होंने ऑप्ट किया कि मैम हम वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। सो ये दिल्ली एनसीआर के कॉजेज मैं देखती हूँ, और वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया नूतन गुप्ता है नूतन जी दूसरे है। ट्रस्ट पे, वो वहाँ के सारे कॉजेज देखते हैं। तो यहाँ पे अभी टीम क्या हो ऑफिस रहा है? सेटअप होना है यहाँ सेटअप होना इन दिल्ली। ओके ओके, या आई थिंक ग्रेजुअली इट विल। पे।
now how are you reaching to people, and what is that are you undertaken currently? आई एम ट्राइंग टू रीच पीपल. फर्स्ट इज डेटा कॉलिंग. हमारे पास काफी सारा डेटा है जो हमारे पास है, उसके थ्रू हम लोगों को संपर्क करते हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट माध्यम, हमने एक एनजीओ की लिस्ट प्रिपेयर करी है कीर्ति जी. ओके. इन एनजीओ से हम कनेक्ट होते हैं. इनमें से एक या दो एनजीओ हमने अडॉप्ट भी किए हैं कि हम यहाँ पे रैंडम कॉजेस किया करेंगे. सुपर. तो ये जो एनजीओ के पास खुद का एक डेटा होता है, जो लोग आते हैं डोनेशन करते हैं या इनको पता है कि कहाँ पे क्या जरूरत है, तो ये बिल्कुल सही कनेक्ट करते हैं. इनके सारे जो डिटेल्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं. तो वी आर मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ दीज शेल्टर होम्स, दीज एनजीओज, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे एल्डरली एनजीओ है, यहाँ पे दवाइयों की जरूरत है, या फिर यहाँ पे एक बच्चों का एनजीओ, यहाँ पे बुक्स की जरूरत है. तो दीज आर वेरी इजी टू कनेक्ट. वेबसाइट पे आप इनका ईमेल से भी आपको इनको कांटेक्ट कर सकते हो, एंड दे गिव यू ऑथेंटिक डेटा. Okay. So that is the way Soch Foundation is leading ahead. Okay. And I think you have on YouTube wherein you are spreading the awareness also. Yeah, recently मैंने एक बच्चों के राइम्स का YouTube चैनल शुरू किया है, डोडो फ्रोडो के नाम से. Okay. ये मैं अपने सन से इंस्पायर हुई हूँ. तो ये राइम्स देखते रहता था खाना खाते हुए, जैसे सारे बच्चे करते हैं. तो हम इन राइम्स को अवेयरनेस के माध्यम से हमने ये शुरू किया, जैसे बच्चे कैसे फन के साथ लर्निंग कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है, मास्क पहनना क्यों जरूरी है. प्लस इसमें हमने और चैनल्स हम ऐड करेंगे. एवरी वीक वी ऐड अ वीडियो. अब जैसे सेव मरीन लाइफ, मरीन के पास जाके और बीच के पास जाके प्लीज प्लास्टिक मत फेंको. तो ये बच्चे इससे सीखेंगे भी, इसको एंजॉय भी करेंगे. तो just 2 weeks back we have launched this Dodo Frodo YouTube channel. इसमें बच्चों की awareness rhymes हमने शुरू करी. Great. That's a very creative idea. And I think if you educate children, you eventually educate the society, because they ultimately talk about it in the family, and that's how the message is spread. Excellent. और अभी जैसे schools बंद हैं, तो they tend to spend time watching something online. Yes. तो कुछ fruitful देखेंगे तो it will be really helpful for them. Get registered also. Very true. Very true. Need of the hour. No doubt about it. Future plans क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स अभी हमने कीर्ति जी शुरू किया है. एक तो एनसीआर में आपको ऑफिस सेटअप करना है. हाँ, वो तो है ही है. बट सोच फाउंडेशन को हम एज अ एनजीओ ही उसको बड़ा नहीं करना चाहते हैं. हमने एक पर्पस, एक विजन सेट किया है. दैट विल बी आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर हुए हैं हम. इस कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है. तो ऐसे ही कुछ एक दो केसेस से हम कनेक्ट हुए. एक महिला है, झारखंड में है, वो हैंडमेड मास्क बनाती है. तो हमने उनसे कनेक्ट किया. अब उनकी फैमिली में वही करता धरता है. अच्छा. तो उनसे कनेक्ट करके हमने उनको अपने एनजीओ पे बोला हमसे टाई अप करिए, आपके जो मास्क हैं हम खरीदेंगे ऑन सम मिनिमम डिस्काउंट, एंड ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके नाम से, so that आपको भी एक रोजगार का माध्यम मिलेगा. उनका ब्रांड आप प्रमोट करेंगे. करेक्ट. ऐसा ही बैंगलोर में एक और महिला है जो सैनिटरी पैड बनाती हैं एट द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज. और ये इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड है. तो इनसे टाई अप करते हैं, और जब हमारी महिलाओं को ये सैनिटरी पैड का कॉज होता है तो हम उनसे प्रोक्योर करते हैं, और इन महिलाओं को हेल्प मिलती है कि वो फर्दर उससे अपना मटेरियल खरीदती हैं, और फिर उनका बिजनेस ऑनगोइंग रहता है. उनके लिए ये होता है कि एक तरफ से वो कॉज में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उनका इनकम भी चल रहा है. तो वी एज अ सोच फाउंडेशन, आई जस्ट डोंट वांट टू बी नोन एज एन एनजीओ, बट आई वांट टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज वुमेन्स आल्सो, सो दैट देयर फैमिलीज are going on with the business, plus they are not getting into something which they really don't want to do. मजबूरी में आप कुछ ना करें, आप खुद आत्मनिर्भर रहें. या फिर अब जैसे हमें हाल फिलहाल हमें बोला गया था कि 7-8 महिलाएं हैं, वो स्विंग मशीन के लिए दे आर लुकिंग फॉर couple of sewing machines. They have a talent of stitching these clothes. So if we crowdfund that cause and give them a sewing machine, it will be a, there'll be a way of their employment. Correct. Earning source, yes. So I don't want to be an NGO alone, as I said. I want to connect with these people
who want to be working independent in future. Plus, they are running their families and also they are contributing to the cause. हाँ, That ये is the vision of Soch Foundation. vision of Soch. That's a really good idea because आप कितने लोगों तक reach कर पाते हो, that is what matters. And through this, you are giving infrastructure to people to scale up and at the same time earn money and be independent. Absolutely, makes a lot of sense. बहुत बहुत धन्यवाद. Nice talking to you. Thank you so much, Kate. Take care. All the best. And I just hope that Soch doesn't remain limited to one state or two states. It grows across the globe, and your vision is extremely good to give a platform to women to scale up and make them independent. So all the best for that. It was wonderful talking to you, and keep in touch. Thank you so much for the invite. It was lovely talking on your session. Thank you so much. Namaste. Dhanyawad.